central government's Waqf legislation, with clashes between protesters and security forces leaving at least 3 people dead, over 150 arrested and 15 policemen that have sustained injuries. In the latest from the violence hit Murshidabad, firing was heard in Dhulia. Latest reports coming in suggest that 2 kids have been injured in the firing, whilst BSF has also been attacked. As of now, 4 more CRPF companies have been deployed. We're also picking up news of Hindu families whose houses have been burnt during the violence in Murshidabad that have now migrated to Malda. Take a look at some of those, pop-up refugee camp sort of pictures that you see on your screens as well. Earlier, the Calcutta High Court it had ordered the deployment of Central Armed Forces in West Bengal's Murshidabad, where protests against the Waqf Amendment Act spiraled into violence, killing at least 3 people. A bench of Justices Sauman Sen and Raja Basu Chaudhary said that the measures taken by the state government have not been adequate and the actions have to be taken on a war footing to arrest the rioters. The court's order comes after BJP leader and leader of opposition in the West Bengal Assembly, Suvendu Adhikari, sought the deployment of central forces in the violence-hit districts bordering Bangladesh. Murshidabad has been tense since the 8th of April as protests against the recently enacted Waqf Act turned violent, with protesters clashing with the police. लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब हम चाहते, छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है, कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। जो भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए मुसलमान भाइयों को डरा करके ठीक उसी तरह कर रहे हैं जैसे CAA के साथ NRC जोड़ दिया था, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो, चाहे देश के कोई भी हिस्से हो। उस समय भी बहुत लोग मरे, बहुत लोगों पे केस चले और निकला कुछ नहीं, क्योंकि NRC आया ही नहीं था, गलतफहमी कर रहे थे। तो ये बिल जो है वक्फ बोर्ड से संबंधित जो अमेंडमेंट बिल आया है, ये इनके हित में है, लेकिन राजनीतिक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां गुमराह करके मुसलमानों को ये प्रदर्शन करा के और इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, जो 3 लोगों की हत्या हुई है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, पर जिनकी जान गई है उनके घर वालों से पूछो। इनको तो राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, एक आधा MP MLA ज्यादा जीत जाएंगे, पर देश में अशांति फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को डरा करके उनकी वोट लेनी, और जैसे पहले 370 पे करा, CAA पे करा, कुछ था ही नहीं, 3 तलाक पे करा, कुछ था ही नहीं। मुसलमानों के हित में है, देश तरक्की कर रहा है, मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं। Order with regard to deployment of central forces in Bengal, Murshidabad area, I think it is a slap on the face of Mamata government, as there are many Hindus who are being harassed, BJP workers are being harassed, and in Murshidabad 3 people were killed, and the West Bengal government is very much pro-Muslim and anti-Hindu government. The demonstration with regard to the Waqf and her statement that Waqf will not be implemented in Bengal is something very unconstitutional, because the constitution has to be respected by the elected government of any state. Mamata Banerjee cannot say that Waqf Act amendments will not be implemented in West Bengal. Is a statement which is unconstitutional, and action also should be taken against her. बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कानून और व्यवस्था दुरुस्त रखें, किसी भी हालत में न लोगों की क्षति हो न संपत्ति की क्षति हो। लेकिन देश में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जहाँ पे रोज नए प्रयोग ये करते हैं कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़े, अंत में कोई भी राज्य उस नफरत की आग से बच नहीं सकता है। तो कहीं भी हिंसा होती है जिसकी बुनियाद नफरत है, तो सिवाय उस हिंसा को कंट्रोल करने के राज्य सरकार के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। ये ज़रूर है कि राजनीतिक तौर पर
इस तरह की कोई हिंसा होती है जो जिसकी बुनियाद नफरत है, तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी चाहिए कि उनका जो मिशन है कहीं भी नफरत पैदा करने का, वो सफल हो रहा है। हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इसका निर्णय लिया और तुरंत जो है सीआरपीएफ वहां डिप्लॉय हो गई। तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है अब आगे शायद ना हो। विपक्ष तो यही चाहेगा कि ये मामला गर्म रहे, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर टिकी है। अभी जितना वो मुसलमान को भड़काएंगे और भड़काकर सड़कों पर लाएंगे, इतना ही मुसलमान उनके करीब जाएगा, इतना ही मुसलमान उनको वोट देगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं मुसलमानों से, मुसलमानों इसको समझो। विपक्ष नहीं चाहता कि तुम चैन से बैठ जाओ, विपक्ष नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें, विपक्ष ये चाहता है कि तुम हमेशा सड़कों पर रहो। अगर तुम उनके कहने से डरते रहोगे, सड़कों पर रहते रहोगे, तो तुम अपना फ्यूचर देखो क्या होगा।